My dear students, I am your educator Shohini and welcome to Shohini's Bio Book. I hope you all are very well and do take care, learn with me. So, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत ही देर कर दी जेनेटिक्स की पार्ट 3 लाने में, लेकिन अब आई एम हियर विथ यू ऑल विथ पार्ट 3 ऑफ द वेरी बेसिक चैप्टर बायोलॉजी जेनेटिक्स. इससे पहले हमने बात की थी प्री मेंडेलियन जो थ्योरीज थी उनके बारे में और हमने वेरिएशन की डिफरेंट टाइप्स को जाने थे और मेंडल के एक्सपेरिमेंट की एक इंट्रोडक्शन मैंने दी थी और बताई थी कि अगले वीडियो में हम डायरेक्टली मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे. तो चलिए और देर ना करके शुरू करते हैं आज का सेशन. कम विथ मी, लर्न विथ मी. सो बिफोर वी गो टू द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, we must learn some terminologies related to the experiment that we will use while describing the experiment. So here are the few terminologies or terms that will be needed. The first term, that's very important one, and that's the first term we must learn while studying genetics. The first that is gene. I have already told all of you about gene. What is it? This is actually the active regions of the DNA. What does it mean? It means that it is the functional portion of the DNA that carries the polypeptide, that carries the potential of forming that polypeptide that will express a characteristic. Okay, so that is gene. Now the next term is allele. We will definitely learn about allele because it will be the most used term while describing that experiment by Mendel. So what are the alleles or what is an allele? Assume that there is a character like tallness. The Mendel had took the character of tallness, that means the character of height in the sweet pea plants. Like he experimented on sweet pea plants. So if the character is tallness or height, it has two forms, like either the plant will be tall or the plant will be dwarf. So there are two different forms of the particular character tallness, like they have two traits, either tall or dwarf. Okay, so the gene that has the potential to express the character of tallness must have two different forms for expressing either tallness or dwarfness. These two different forms of the gene that are used in expressing the tallness forms, like either expressing tallness or dwarfness, the forms are known as alleles. So alleles are basically different forms of a single gene that will express different forms of a particular character. Alright, so I think you guys have understood the fact what is allele. So let's write it down. Alleles are different forms of a particular or a single gene. Alright, so these are the main two terminologies, gene and allele. Now let's go to the next one. The next term we have is locus. It sounds similar to location and it is similar to location. Locus means the location of a particular gene on a chromosome, or we can say the location of a particular allele because we know that allele is just a form of gene, right? So it's the location of a gene or allele on a chromosome. Alright, so this is locus. Now let's write down that how we write the alleles on our notebook. हम कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे एलील को. सपोज अ कैरेक्टर इज टॉलनेस और हाइट. ओके, तो हाइट की दो फॉर्म्स होते हैं, मैंने अभी अभी बताई थी कि एक होता है कि टॉल, दूसरा होता है ड्वार्फ. मेंडल ने भी टॉलनेस यानी हाइट को चूज़ किया था उनके एक्सपेरिमेंट में. तो उसका दो फॉर्म था, एक था टॉल एक ड्वार्फ, यानी कुछ पी प्लांट्स थे टॉल और कुछ पी प्लांट्स थे ड्वार्फ. वी विल एक्सप्रेस द फॉर्म of tall with capital T
and of dwarf with small t, not with capital D, because they are the forms of a single gene. So it will be helpful for us to take a single alphabet but in its capital form and small form. Okay, just like they are the two forms of a same gene. So we will take capital T for tallness and small t for dwarfness. Or we can also take capital D for tallness and small d for dwarfness. But remember that we will always take the capital letters for the tallness and small letters for the dwarfness. Why is it like that? Because the tall character is dominant over the dwarf character. Now I have used another term, dominant. Now what does it mean by dominant? You know that we say that this person is dominant over his wife. इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्सन जो बोलता है ना उसी का चलता है घर पर, उसकी वाइफ की नहीं चलती, यानी वो जो बोलेगा वही होगा. तो वो अपनी वाइफ के ऊपर डोमिनेंट है. यानी अगर वो और उनकी वाइफ साथ में रहेंगे, यानी अगर टॉलनेस वाला एलील कैपिटल टी और ड्वार्फनेस वाला एलील स्मॉल टी साथ में रहेगा, तो उसमें से कैपिटल टी का जो कैरेक्टर है, यानी उस पर्सन का जो डोमिनेंट है उसकी पत्नी के ऊपर, उस पर्सन का जो कहना है उसी को सुना जाएगा. यानी कैपिटल टी का जो एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेस्ड होगा. इसका मतलब क्या हुआ? अगर कैपिटल टी एलील और स्मॉल टी एलील साथ में रहे तो कैपिटल टी वाला कैरेक्टर यानी टॉलनेस एक्सप्रेस्ड होगा. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द डोमिनेंट कैरेक्टर. एंड द सेकेंड वन, dwarfness, it is called not dominant. That means it is recessive. The term for not being dominant is recessive. So tall is the dominant character and dwarf is the recessive character. That's why we will always take the capital letters for the dominant characters like tallness and the small letters for the recessive characters like dwarfness. I hope you have understood the fact, right? तो अब क्या बात होगी, अगर कोई पौधा, कोई पेड़ अगर टॉलनेस शो कर रहा है, अगर हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लांट टॉल है, तो उसके अंदर एलिलिक अरेंजमेंट क्या हो सकता है. यानी हमें पता है कि टॉलनेस के लिए कैपिटल टी होना चाहिए, ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी होना चाहिए, लेकिन एक एलिल नहीं होता है. दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर एक एक कर दो एलिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में भी हम आगे बात करेंगे. तो दो एलिल्स रहता है, यानी दो एलिल्स प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर के एक्सप्रेशन के लिए. तो अगर वो प्लांट टॉल होगा तो एक तो उसका एलिलिक अरेंजमेंट हो सकता है कैपिटल टी, यानी दोनों डोमिनेंट एलील रहेगा तो ऑफ कोर्स डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा. और हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी जो कि स्मॉल टी के ओवर डोमिनेंट है, तो फिर भी उसके बावजूद भी, यानी स्मॉल टी के रहने के बावजूद भी टॉलनेस ही एक्सप्रेस्ड होगा. लेकिन अगर ड्वार्फ को डोमिनेंट होना है तो फिर अगर उस पर्सन की वाइफ को डोमिनेंट होना है, उसको अपनी बात मनवानी है, तो अकेला रहेगा तो ही उसकी बात लोग मानेंगे. उसके पति साथ होगा तो उसी की बात सुना लिया जाएगा, है ना. तो फिर स्मॉल टी को ही सिर्फ रहना होगा, तब जाके ड्वार्फ के कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड होगा. यानी दो एलील ही स्मॉल टी और स्मॉल टी होनी चाहिए फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, दैट इज ड्वार्फनेस. आई होप यू गाइज have understood this. Okay, if there is any confusion please let me know in the comments. Okay, तो ये रहा एलिलिक कॉन्फर्मेशन क्या होना चाहिए दो कैरेक्टर्स के लिए. अब मैंने जो एक बात बताई कि होमोलॉगस क्रोमोसोम वो क्या होता है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट क्रोमोसोम ना, तो क्रोमोसोम के बारे में तो हम जानते हैं. अब होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. चलिए जानते हैं. ह्यूमन्स में हम में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स जोड़े में रहते हैं. यानी जो नंबर 1 क्रोमोसोम है वो उसका 2 कॉपी रखता है अपने साथ. जो नंबर 2 होता है, नंबर 2 क्रोमोसोम्स भी 2 होते हैं, नंबर 3 क्रोमोसोम्स भी 2 होते हैं, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7. तो ये जो जोड़े में रहने वाला क्रोमोसोम्स होते हैं ना, यानी नंबर 1 के जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिमिलर टाइप्स के होते हैं. सिमिलर टाइप्स की मतलब द क्रोमोसोम्स ऑफ नंबर 1 दे आर शोइंग होमोलॉजी.
Homology means similarity. Similarity in what? Similarity in their structure. हमें पता है कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेसिस पर मेटासेंट्रिक हो सकता है, सब मेटासेंट्रिक हो सकता है, एक्रोसेंट्रिक हो सकता है, टेलोसेंट्रिक हो सकता है, राइट? So if they are homologous, they will be of same type. If the first one of number 1 chromosome is metacentric, the second one will also be metacentric. If the first one of number 3 chromosome is submetacentric, then the second one of number 3 chromosome will also be submetacentric, like this. And not only this, if there are 1 centromere, 2 centromeres, 3 centromeres in one copy of the homologous chromosome, the another copy will also have the same number of centromeres. And they also have the same genetical arrangement on them. उस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स का अरेंजमेंट होता है, जीन्स कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल डिफरेंट जीन्स जिस अरेंजमेंट में वो लीनियरली अगर वो पोजीशन होता है एक क्रोमोसोम में, तो उसका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर भी उसका सेम तरह की ही अरेंजमेंट्स रहेगा. ओके, so the homologous chromosomes are of same size, have same nucleotidal arrangement, same genetical arrangement and of same structural configuration. Okay, like मैंने जैसे बताया है कि अगर एक सेंट्रोमेन एक मेटासेंट्रिक होगा, दूसरा भी होगा, एक एक्रोसेंट्रिक होगा, दूसरा भी होगा, like that. All right. तो ये था कुछ टर्मिनोलॉजीज. अब चलते हैं हम सीधे सीधे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पर. सो लेट्स गो टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. दो और टर्म्स है जो मैं बताना भूल गई थी. एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा है डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो हमें इन दोनों के बारे में जानना होगा पहले, उसके बाद हम जाएंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पर, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर. So let's know about the terms monohybrid and dihybrid cross. उससे भी पहले हमें जानना होगा कि क्रॉस का मतलब क्या होता है. It mean by cross. क्रॉस करने का मतलब होता है दो प्लांट्स की, अगर पर्टिकुलर मैंने दो ऐसे प्लांट्स ली हो जिसकी सपोज फ्लावर कलर ऑपोजिट हो, किसी का पर्पल हो तो दूसरा का हो वाइट, या एक प्लांट हो टॉल दूसरा हो ड्वार्फ, या एक का हो मतलब पॉट का कलर ग्रीन हो, एक का हो येलो. तो दो ऑपोजिट कैरेक्टर वाला अगर मैं ऑर्गेनिज्म लेती हूँ और उन दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स में अगर मैं फर्टिलाइजेशन करवाती हूँ, यानी उन दो प्लांट्स के अंदर अगर मैं रिप्रोडक्शन करवाऊँ, तो उसको कहा जाएगा कि दैट इज़ अ क्रॉस. इट मीन्स कि मैंने उन दोनों प्लांट्स की क्रॉस करवाई. दिस इज़ क्रॉसिंग. ओके, सो दैट्स क्रॉस. अब मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है और डाईहाइब्रिड का मतलब क्या होता है. मेंडल ने अपनी एक्सपेरिमेंट में 7 ऑपोजिट कैरेक्टर्स को चुना था, लेकिन उन्होंने 7 ऑपोजिट कैरेक्टर्स को साथ में नहीं चुना था. उन्होंने पहले एक ऑपोजिट कैरेक्टर की पेयर्स ली थी, जैसे कि टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स में क्रॉस करवाई. तो कभी उन्होंने 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स को लिया, जैसे कि टॉल ड्वार्फ, ये हो गया एक हाइट का कैरेक्टर, दूसरा उन्होंने फ्लावर कलर चूज़ किया. तो फिर ऐसे अगर हम किसी 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को ले, ओके, सो 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट कैरेक्टर्स, यानी किसी एक कैरेक्टर की 2 ऑपोजिट ट्रेड्स को अगर हम लेते हैं तो इसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और डाईहाइब्रिड यानी 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट ट्रेड्स, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट कैरेक्टर्स, यानी 2 कैरेक्टर्स की अगर हम 4 ऑपोजिट ट्रेड्स को ले रहे हैं, 2 फॉर ईच, तो उसको हम कहेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस. आज हम जानेंगे सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में. चलिए जानते हैं. तो चलिए चलते हैं मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट की ओर.
उन्होंने जो कैरेक्टर को चूज़ किया था वो था ब्लैंड हाइट और उसकी दो अपोजिट ट्रेट्स था टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। सो सबसे पहले हम टॉलनेस के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल होगा उसको एक एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द एलील फॉर टॉलनेस बी कैपिटल टी। टॉलनेस टी से शुरू होता है और जो कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो हम इसी की जो फर्स्ट लेटर है उसके हिसाब से हम एलील को एज्यूम करते हैं। तो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील क्या होगा? कैपिटल टी। और अब चलते हैं ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील की ओर। तो उसको हम उसी जो लेटर हम चुन रहे हैं डोमिनेंट की, उसकी स्मॉल वर्जन को लेते हैं, यानी कैपिटल टी अगर टॉलनेस के लिए होगा तो ड्वार्फनेस के लिए हम लेंगे स्मॉल टी। स्मॉल टी। तो अब हम ये लिख देंगे कि जो कैपिटल टी है यानी जो टॉलनेस का ट्रेट है वो डोमिनेंट है ड्वार्फनेस के ऊपर। तो उससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि मेंडल ने जो दोनों प्लांट्स को लिया था उन दोनों प्लांट्स में एक था प्योर टॉल और एक था प्योर ड्वार्फ। तो उन दोनों का जीनोटाइप क्या रहा होगा? तो जीनोटाइप फॉर प्योर टॉल प्लांट विल बी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। हमने ये पढ़ा है कि प्योर टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लांट का जीनोटाइप क्या होता है? कैपिटल टी, यानी दोनों एलील्स अगर कैपिटल है तो वो प्योर टॉल हो जाएगा। और जीनोटाइप ऑफ प्योर ड्वार्फ प्लांट का क्या होगा? स्मॉल टी, यानी दोनों अगर रिसेसिव एलील होगा तो वो ड्वार्फनेस शो करता है। तो अब वो बात जो हमने अभी अभी कही उसको हम लिख देंगे कि टॉलनेस यानी टॉलनेस का जो ट्रेट दैट इज डोमिनेंट ओवर द ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस। Capital T in bracket is dominant over the trait dwarfness, that is small t. तो अब देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम कैसे लिखते हैं। तो एक प्लांट है प्योर टॉल, तो एक तरफ हम लिखेंगे प्योर टॉल और दूसरा जो प्लांट है वो है प्योर ड्वार्फ, तो दूसरी तरफ हम लिखेंगे प्योर ड्वार्फ। और जो कि हम इन दोनों में क्रॉस कर रहे हैं यानी दोनों में हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि क्रॉसिंग कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। तो चलिए लिख लेते हैं। सो पहले प्योर टॉल क्रॉस प्योर ड्वार्फ और फिर प्योर टॉल के नीचे हम उसका जीनोटाइप लिख देंगे जो कि है कैपिटल टी और फिर प्योर ड्वार्फ के नीचे हम उसकी जीनोटाइप लिख देंगे जो कि है स्मॉल टी। एक बार क्रॉस साइन हम दे चुके हैं तो दोबारा नहीं देंगे। अब ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है। अब इनसे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होगा वो लिख लेंगे। कैपिटल टी से दोनों ही गैमेट एक ही तरह की प्रोड्यूस होगी तो हम एक ही लिख रहे हैं कैपिटल टी, और स्मॉल टी से स्मॉल टी। ये था फर्स्ट गैमेटिक जनरेशन। अब इन दोनों गैमेट को अगर हम F1 जनरेशन में एक होते हुए देख रहे हैं तो वो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये होगा F1 यानी फर्स्ट प्रोजेनी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम क्या कहते हैं? हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हम कहते हैं हाइब्रिड टॉल। तो वही लिख देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स हाइब्रिड टॉल। अब मेंडल ने क्या किया था? उन्होंने ये जो हाइब्रिड टॉल प्लांट आए थे उसकी ही स्टैमेन को उसकी ही पिस्टल पर उन्होंने रखा था, यानी उन्होंने सेल्फिंग किया था। सेल्फ क्रॉसिंग जिसको हम कहते हैं कि सेम फ्लावर की जो पोलेंस है वो सेम फ्लावर की पिस्टल पर अगर गिरे तो उन्होंने हाइब्रिड टॉल प्लांट्स में सेल्फ क्रॉसिंग की थी। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? यानी F1 को F1 से ही हम क्रॉस कर रहे हैं
तो वो लिखेंगे हम कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। यही है हमारा F1 जनरेशन। तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, एक होगा कैपिटल टी और दूसरा होगा स्मॉल टी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा F1 जनरेशन था वही दूसरी स्टेप में पेरेंटल जनरेशन की जैसा काम करता है। तो F1 बिकम्स द P2 यानी सेकेंड पेरेंटल जनरेशन, और उससे जो गैमेट्स होगा वो हम क्या रखेंगे G2 यानी सेकेंड गैमेटिक जनरेशन। अब जो सेकेंड प्रोजेनी होगा उसे लिखेंगे F2। तो F2 क्या होगा, इसे हम चेकर बोर्ड यानी जो पानेट स्क्वायर प्रोसेस भी कहलाता है उस प्रोसेस से हम दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। तो चेकर बोर्ड कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। जो कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का चेकर बोर्ड है। तो इसमें 3 कॉलम्स और 3 रोज होंगे। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं 3 कॉलम्स और 3 रोज। फर्स्ट रो पे कॉर्नर पे फर्स्ट कॉलम पे हम क्या लिखेंगे, ये दो साइन, ऊपर की तरफ ये साइन और नीचे की तरफ ये। जो ऊपर की तरफ साइन है उसका मतलब होता है मेल गैमेट्स और नीचे वाला साइन का मतलब होता है फीमेल गैमेट्स। यानी यहाँ पर हमने सेल्फिंग क्या है तो उसके अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे। तो मेल गैमेट्स क्या मिल रहा है हमें, सेम ही मिल रहा है मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब देखेंगे कैपिटल टी को मिलने से क्या होगा, कैपिटल टी फिर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी फिर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देख सकते हैं मैं दिखा रही हूँ, और फिर इन दोनों का होगा स्मॉल टी। तो अब इनका कैरेक्टर्स भी लिख लेते हैं। फर्स्ट जो है कैपिटल टी उसका कैरेक्टर क्या आएगा, प्योर टॉल आएगा, ऑफ कोर्स वी नो। उसके बाद जो है दो कैपिटल टी स्मॉल टी वो क्या होगा, हाइब्रिड टॉल होगा ऑफ कोर्स। और लास्ट जो है आखिरी वाला स्मॉल टी उसका कैरेक्टर क्या होगा, डेफिनेटली इट विल बी प्योर ड्वार्फ। तो चलिए लिख लेते हैं इन लोगों का कैरेक्टर्स। हो गया हमारा F2 जनरेशन का चेकर बोर्ड कंप्लीट। अब हम इस चेकर बोर्ड से F2 जनरेशन में जो प्लैंट्स मिले उनका हम फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। तो पहला लिखते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइप्स क्या होता है, जो बाहर से हमें कैरेक्टर्स दिखाई पड़ता है। बाहर से तो प्योर या हाइब्रिड नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, या टॉल दिखेगा या ड्वार्फ दिखेगा। सो टॉल इज टू ड्वार्फ, दैट विल बी द रेशियो ऑफ फेनोटाइप। सो टॉल इज टू ड्वार्फ क्या मिल रहा है हमें, टॉल हमें मिल रहा है यहाँ पर 3 प्लांट्स और ड्वार्फ हमें मिले हैं 1 प्लांट्स। आप देख सकते हैं चेकर बोर्ड पर, देखिए 3 टॉल प्लांट्स है और 1 ड्वार्फ प्लांट्स है। अब जीनोटाइपिक रेशियो लिख लेते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो यानी जो जीनोटाइप्स है उनका रेशियो। अब उनमें हाइब्रिड टॉल भी आएगा, प्योर टॉल भी आएगा, ड्वार्फ तो आएगा ही। तो जीनोटाइपिक रेशियो यानी किन का रेशियो होगा, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। अब ये हमें कितना मिल रहा है, चलिए देखते हैं। कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है और स्मॉल टी 1 है। सो व्हाट विल बी द रेशियो, 1:2:1। दैट्स ऑल। ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगला वीडियो में हम जानेंगे मेंडल की डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और सिर्फ वही नहीं, इन दोनों क्रॉसेस से मेंडल ने कौन सा लॉज को डिस्कवर किया था उनके बारे में भी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। तो आज हमने जाना मेंडल की एक्सपेरिमेंट के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिए होंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।